Shubharam, Divya Kumar and you. Divya Kumar and me, Yeah. yes. Again, Amit Trivedi has composed it, and it was for the film called Kai Poche. So he called me and he's like, listen, there's a song, it's for a film called Kai Poche. जो भी opportunity मेरे सामने present होती है, how do I do my best in that? Yeah. वो चाहे 4 लाइन हो या 4 अंतरे हो. Absolutely. I think बस बात वहाँ पे ही खत्म हो जाती है. तुझे बुला दिया was actually recorded over a year हैं? prior to the film. Okay. और उसकी भी स्टोरी पायलिया की बात करते हैं जी। बिकॉज अगेन दैट एल्बम उसको नेशनल अवार्ड मिला था जी है ना जी जी मुझे याद है रेडियो पे चला दिया था उसका कोई एक गाना आई थिंक पायलिया या कोई और वो अरे नहीं यार ये लिसनर्स के संग नहीं जाएगा हमारे टीजी के संग नहीं जाएगा और जब नेशनल अवार्ड मिला ना तो मैंने ही कहा था उनको मैंने कहा देखा ये होते हैं गाने सो दैट वाज अ ब्यूटीफुल एल्बम टेल अस अबाउट पायलिया हाउ डिड इट जब अमित त्रिवेदी ने इसको कंपोज किया था ही कंपोज्ड इट एंड ही कॉल्ड मी इनटू द स्टूडियो एंड ही सेड कि ये गाना हम करेंगे यू जस्ट लिसन टू इट एंड टेल मी व्हाट यू फील अभी लिखा नहीं है इसको बस ऐसे ही स्क्रैच और ला 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 ना ना करके गाया हुआ है सो आई सेड या श्योर और जैसे ही मैंने वो गाना सुना है देयर वाज समथिंग अबाउट दैट सॉन्ग इट्स सो यूनिक लाइक आज भी अगर सुनोगे उस गाने को इट्स स्टिल अहेड ऑफ इट्स टाइम इट इज you know in fact that entire album Yeah. Devdi as an album was an album which was ahead of its time मतलब आज भी सुनोगे तो बहुत ही रिफ्रेशिंग लगता है आई कैन ट्रिप राइट नाउ exactly और उसके हर एक और कितने गाने थे you know each song was a story you know each song had that strong powerful character you know तो जब मैंने पायलिया सुना and I was just blown and I told Amit I was like can I write it and he's like really but I'll get someone to write it and he's like no I said मेरे को बस एक I just want to try it if you don't like it please feel free to like tear it तब हम पेन पेपर लेके लिखते थे हम ऐसा फोन में नहीं लिखते थे तो I said tear it and throw it in the dustbin no problem but I'd like to make this attempt and he's like हाँ ठीक है I went home and I was like या शायद ज़्यादा challenge ले लिया हो नहीं पा रहा है because it is a tricky song actually to even to sing फिर अचानक से रात को suddenly like one line came in my head and then straight up like within half an hour 45 minutes I had the entire song and I messaged the song to Amit and I said that please feel free to do whatever you like but I think I have cracked it and in the morning he woke up he must have seen it and he called me and he's like perfect hai just come to the studio let's dub so that's how पायलिया happened एक और गाना जो मुझे बड़ा सुकून देता है पर्सनली आई लव इट टुडे इट्स ऑल अबाउट माय फेवरेट्स दैट इज शुभारंभ Yes. एंड वहां पे ना एक जगह आती है जहां पे आप अपने गले को रोकते हो कुछ है वो एक वॉइस क्रैक है हल्का सा दैट इज लाइक अ $1 billion स्माइल $1 million स्माइल दैट्स अ $1 billion note I would say talk to us about that song Shubharam Divya Kumar and you Divya Kumar and me yes again Amit Trivedi has composed it and it was for the film called Kai Poche so he called me and he's like listen there's a song it's for a film called Kai Poche it's based in Gujarat और earthquake के journey की story है and there's a lot happening you know तो I am myself from Ahmedabad I'm a Gujarati Amit is a Gujarati और film was a Gujarati backdrop तो I was like okay और तब तक मैंने कभी भी गुजराती गाना नहीं गाया था not even for a Gujarati film or anything so for me it was like okay मेरा पहला गुजराती गाना और तब तक मैंने obviously काफ़ी हिंदी गाने गा चुकी थी मैं और काफ़ी पॉपुलर गाने गा चुकी थी so people knew me as a playback singer आज भी काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि मैं गुजराती हूँ तो at that time तो nobody knew I'm a Gujarati and you know मेरा पहला गाना था so I was really excited I said yeah I'd love to sing this and it sounds good and he's like you know but I want this full throttle एक अलग टोन चाहिए मुझे तो we'll have to once you come to the studio we'll have to crack the tone first because मुझे इसमें हस्की नहीं चाहिए मुझे इसमें sweet singing नहीं चाहिए I want that full throttle कुछ powerful ठेठ है वो हाँ ठेठ folksy vibe चाहिए so I said ठीक है we'll crack it he's like हाँ तो ठीक है काम करो पहले you write it
And I was like, है? Where did that come from? क्योंकि पायलिया तो मैंने सामने से कहा था कि मुझे लिखना है, शुभारंभ तो he's like, you write it. I said, listen, you know, every writer thinks in a certain language that they resonate the most with. कुछ लोग इंग्लिश में सोचते हैं और फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं, हाँ, बोलते हैं, हिंदी में सोचते हैं. आई सेड मैं हिंदी में सोचती हूँ, मैं इंग्लिश में सोच सकती हूँ, गुजराती में लिरिकली मैंने कभी सोचा नहीं है. सो आई डोंट नो. ही इज लाइक नहीं, आई नो यू विल बी एबल टू राइट इट. And I was like, ये तो अलग ही challenge है. And then yeah, that's why I sat with it and I wrote it in Gujarati and I was like, I was blown for myself. I was like, ये कहाँ से आया? So वो जो मेरे अंदर के जो गुज्जू तत्व थे वो पूरे गाने में मैंने उतार दिए हैं. I have used words like टमटमाता and all of that, and even the Gujarati writers, they were like, अरे कितना अच्छा लिखा है. And I was like और वो हमेशा हमेशा के लिए हो गया है. हाँ. आई थिंक गरबा कंप्लीट नहीं होता उसके बिना. जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त को वो मेरे देश की धरती बजता है ना, वैसे ये वाला जब तक नहीं होएगा. इनफैक्ट इट वाज लिटरली लाइक एन एंथम इवन फॉर आईपीएल. राइट. यू नो, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम जब भी कोई ब्रेक होता था या सिक्सर होता था या फोर होता था, कुछ भी होता था या विकेट होता था, देयर यूज्ड टू बी शुभारंभ. शुभारंभ क्रॉस्ड द बाउंड्रीज बियॉन्ड द लैंग्वेज एंड कल्चरल रेफरेंस दैट इट हैज. यू नो, जो डांडिया या नवरात्रि का जो फील है गाने में, it has crossed those limitation, you know, and it has reached global audience. Right. मुझे आज भी पता है, like so many people send me videos कि अरे, you know, and they are not even Gujaratis, Punjabi weddings या and they are like, we danced on your song in our wedding, and I was like, see, that's the power of music. Yeah. You know, power of good music. कि the language has nothing to do with it, and that's what Shubharambh stands for. It stands for Shubh Arambh. Yes. Be it in any area of life. We have to talk about another favorite of mine, that is तुझे बुला दिया. अच्छा श्रुति, ये बोलो कि फुल फ्लेजेड गानों के अलावा भी, you know, ये जो गाने हैं जहाँ पे कैमियो जैसा कहूंगा, डोंट माइंड मी सेइंग दैट, Absolutely not. आप आते हो, आप करते हो और निकल जाते हो, एंड इट स्टेज फॉर एवर, बिकॉज ऑफ कोर्स शुभारंभ, दिव्या कुमार इज देयर, यू आर देयर, लेकिन अभी भी वो श्रुति का गाना ही रहेगा. तुझे भुला दिया जो आपने बिट किया है, ऑफ कोर्स मोहित चौहान एंड यू, इट्स आप दोनों हो उसमें. Absolutely. लेकिन वो आपका बन जाता, यू काइंड ऑफ ओन इट. फिर चाहे एक शब्द हो, एक लाइन हो या पूरा गाना हो, उसके पीछे क्या खेल है? कभी स्केप्टिकल होते हो ऐसा करने से पहले, या होते थे उस समय? नहीं, एक्चुअली नॉट. आई थिंक फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मुझे कोई भी जो भी अपॉर्चुनिटी मेरे सामने प्रेजेंट होती है, हाउ डू आई डू माई बेस्ट इन दैट. वो चाहे 4 लाइन हो या 4 अंतरे हो. आई थिंक बस बात वहाँ पे ही खत्म हो जाती है कि आप अपना बेस्ट दे रहे हो, बाकी द रेस्ट डज नॉट मैटर. इट्स अप टू द ऑडियंस, इट्स अप टू द क्रिएटर ऑफ द सॉन्ग, यू नो, कि उन्हें हाउ डू दे एनविजन दैट सॉन्ग, यू नो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यू नो 4 लाइन है बटा हुआ कि वो पाए, जरूरी नहीं है कि वो ऐसे कि those 4 lines can be more important too, you know, like exactly the case in तुझे भुला दिया. You know, the song is known for those 4 lines, और आज तक के जितने भी रीमिक्सेस भी बने हैं, I know, वो भी वो 4 लाइनों के इर्द गिर्द ही है. यू नो, वो चाहे लो-फाई मिक्स हो या कोई भी ले लो, तो वो 4 लाइनों से गाना बनता है. एंड आई थिंक आई वुड रियली take this opportunity to be thankful, because it's a blessing. I'm really grateful कि मुझे ऐसे गाने मिले हैं जहाँ पे वो 4 लाइन हो या मेरे सोलो सॉन्ग्स हो. You know, they've all been such beautiful compositions. They've been such great experiences, you know, learning experiences. Because all my songs have been different from each other. वो चाहे मरजावा हो, वो चाहे शुभारंभ हो, वो चाहे पायलिया हो, वो चाहे रसिया हो from कुर्बान, which was so classical, raga based song. मैं उस समय I was like surprised. I was like, okay, ये भी है, ये. And you know, such songs in such an early stage of your career, you know, and I was having like back to back solo songs. जबकि आज के एरा में वी आर मिसिंग दो सोलो सॉन्ग्स. इनफैक्ट फीमेल गाने बनने ही लिटरली बंद हो चुके हैं. मुश्किल से 1-2 गाने बनते हैं, उसमें भी अगर ड्यूएट हुआ तो यू नो 2 लाइन 3 लाइन, विच आर नॉट इवन सिग्निफिकेंट इनफ. सो
Yeah, I think I've just been blessed with such songs. Yeah, when you have those blessings in front of you, तब आप रियाज करने नहीं जा सकते हो. You have to be prepared and you have to give more than your best. Yeah. वो हुआ तुझे भुला दिया का रिकॉर्डिंग का थोड़ा मेरे को बताओ आप. तुझे भुला दिया was actually recorded over a year prior to the film. Okay. और उसकी भी स्टोरी. So I have stories for each and every recording and they are such amazing. So this is what you cherish most, you know. So तुझे भुला दिया was recorded a year prior. मैं बैंड्रा में थी and I was that time I used to tour a lot with विशाल and शेखर. तो हम लोग स्टूडियो में कुछ काम कर रहे थे and they were like, अच्छा, since you're here, we are working on this song. Can you just quickly sing these 4 lines? It's a scratch. अभी तक गाना बना नहीं है. So I said, yeah, sure. हमने इस गाने को कंसोल रूम में बैठ के प्रोग्रामर इज स्टिल वर्किंग ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सॉन्ग और कॉम्पोजिशन अभी बन रही है साइड बाय साइड. सो 4 लाइन दिए. कुमार पाजी थे, वो लिख रहे थे. विशाल शेखर अभी कंपोज कर रहे थे आगे गाने को और अभिजीत नलानी अभी उस प्रोग्राम पे काम कर रहे थे. और गाना अभी तक अप्रूव हुआ भी नहीं है. दिस इज स्टिल लाइक वेरी स्क्रैच लेवल. लाइक गा लो. मैं कहा ठीक है. तो ऐसे ही 5 मिनट में एक रन थ्रू किया एंड दे वर लाइक हाँ ठीक है, दिस इज गुड इनफ फॉर द स्क्रैच एंड दैट्स इट. एंड आफ्टर अ ईयर आई गेट अ कॉल फ्रॉम विशाल शेखर एंड दे वर लाइक, अच्छा, रिमेंबर दैट वन सॉन्ग वी डन? एंड आई डिडंट इवन रिमेंबर द ट्यून क्योंकि अभी इतना टाइम हो गया कि गाने की ट्यून भी याद नहीं है. तो दे वर लाइक वो गाना अप्रूव हो गया है. आई वाज लाइक ओह ग्रेट, आप मुझे बताइए कब डब करना है. एंड दे वर लाइक नो एक्चुअली वी आर कीपिंग दैट वोकल्स. एंड आई वाज लाइक प्लीज डोंट डू दैट टू मी. लाइक आई वुड लाइक टू डू more justice to the song क्योंकि तब तो ना मतलब ऐसे ही रन थ्रू में गा लिया था फील में. But I would like to do it like properly, you know. I'm not kidding. SM58 अगर जिनको म्यूजिक के बारे में पता है, it's one of the most basic mics जो टॉकबैक के लिए usually यूज होता है. उस पे गाया है ये गाना. वो प्रॉपरली रिकॉर्डिंग बूथ में जाके एक अच्छे से माइक फिल्टर के साथ में गाना रिकॉर्ड नहीं हुआ है. It was literally one go में ये गाना रिकॉर्ड हुआ है and they were like, no, we love it, it's sounding great and we are not changing it. Right. And I was like, no, I'll do better. And they were like, no, we don't want better. This is great for us and we are using